Hello dear friends, welcome back to the channel. Our today's topic is soap and detergent packaging. As we all use soaps and detergent in daily life और बहुत से नए नए डिज़ाइंस और पैकेजिंग हमें देखने को मिलते हैं। क्या आपने सोचा है कि ये सोप्स कैसे बनते हैं, कैसे काम करते हैं, कैसे डिज़ाइन किए जाते हैं, इनकी पैकेजिंग और व्हाट आर द फ्यूचर ट्रेंड्स, इन सब के बारे में आज हम जानेंगे इस वीडियो में। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दें ताकि इन्फॉर्मेशन उन्हें भी मिल सके। सो फर्स्ट वी शुड नो अबाउट सोप्स. What is soap? Soaps are the sodium salt of carboxylic acids in long chains and sodium salt of long chain benzene sulfonic acids are detergent. Here are example of soap: sodium palmitate, sodium stearate. Now detergent. Detergent is a substance or a mixture containing soaps and or surfactants intended for washing and cleaning processes. Examples: the detergent we use in our daily lives are Rin, Surf Excel, Tide, Wheel, Ariel, Vim, etc. These detergents are used to clean utensils and wash clothes. Difference between soap and detergent. Soaps are sodium salt of long chain carboxylic acid obtained by natural resources from plant and animals, fat, oil. Calcium and magnesium salt are insoluble in water, produces come in hard water which affect its cleaning action, and also soaps are biodegradable. While detergents are sodium salt of long chain benzene sulfonic acids or alkyl sulfate. They are made from synthetic materials like hydrocarbons of petroleum or coal. Calcium and magnesium salts are soluble in water. Hard water does not affect its cleaning action. No two biodegradable. इतने जितने सोप के कंपैरिजन में बायोडिग्रेडेबल कम होते हैं. नाउ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन. सोप और डिटर्जेंट क्लीनिंग कैसे करते हैं? जब कपड़ों को गीला किया जाता है तो सरफेस टेंशन कम हो जाता है और जो सोप के अंदर आर ग्रुप रहता है, इट्स अल्काइल बेंजीन, वो डर्ट मॉलिक्यूल्स को लॉक करके कपड़े के सरफेस से बाहर ले आता है. और जब हम रिंस करते हैं, पानी से निकालते हैं कपड़े को, तो ये कपड़े से निकल जाता है और हमारे कपड़े साफ़ हो जाते हैं. नेक्स्ट, डिज़ायर्ड एट्रीब्यूट्स ऑफ सोप. सोप के अंदर क्या क्या एट्रीब्यूट्स होने चाहिए? इट शुड बी स्मूथ एंड क्रीमी फील, अपीलिंग कलर, क्विक रिमूवल ऑफ डर्ट एंड ओडोर, लॉन्ग शेप, यूनिक शेप, ईज ऑफ रिंजिंग, आसानी से घुल जाए, सेफ ऑन स्किन एंड हेयर, एक्सक्लूसिव फ्रेगरेंस, अच्छा स्मेल करना चाहिए. नाउ डिज़ायर्ड एट्रीब्यूट्स ऑफ डिटर्जेंट. It should be smooth and non-gritty. Gritty means dardara. Have good lathering, appealing color and shape, unique fragrance, rapidly cleans dirt, stains, odor, fast dispensing and solubility, safe on body and fabrics, safe on environment. Specific attributes customer oriented. Being customer, क्या क्या इसमें specific attributes होने चाहिए? Soap and detergent must prevent moisture loss, light fastness, alkali and soap jelly resistance, stress cracking resistance, मीन्स के ड्राई होके क्रैक्स ना आ जाए उसको रखे हुए ड्यूरिंग स्टोरेज. वॉन्ट स्ट्रेंथ स्टेबिलिटी, ईज ऑफ डिस्पेंसिंग, शार्प ऑन डिस्प्ले कम्युनिकेशंस, फेवरेबल ऑन कॉस्ट बेनिफिट रेशियो. नाउ what are the forms of soap packaging? Soaps can be packed in envelopes. Envelopes means cartons, paper cartons, floor wrapping, जो ट्रांसपेरेंट फिल्म्स रहती हैं, देन कार्टनिंग, क्लिंग प्लीट रैपिंग. डिटर्जेंट बार पैकेजिंग, जो डिटर्जेंट की टिकिया रहती है, दैट शुड बी पैक्ड इन एनवेलप, फ्लोर रैपिंग एंड फ्लेक्सिबल पाउचेस, सेम like transparent films.
Forms of detergent powder packaging: cartons, HDPE jars, flexible packs. Forms of detergent packaging: liquid detergent, bottles and refill packs. Now what are merits and demerits of envelope packaging? मेरिट्स में जो एनुअल पैकेजिंग रहती है, गुड प्रेजेंटेशन एंड डिस्प्ले ऑन शेल्फ्स। जब स्टोर में या डिस्ट्रीब्यूशन स्टोर्स में हम देखते हैं तो अच्छा दिखता है वो शेल्फ पे रखे हुए। वाइडर चॉइस ऑफ मटेरियल, पिल्फर प्रूफ, लार्ज सप्लाई वेस, लोअर कैपिटल कॉस्ट, अमेंडेबल टू हाई स्पीड पैकिंग। डीमेरिट्स: मॉइस्चर बैरियर एवरेज, मीन्स मॉइस्चर से प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट करने की कैपेसिटी उतनी हाई नहीं होती है। फ्रेगरेंस रिटेंशन लोअर, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम फ्रेगरेंस धीरे धीरे कम हो जाती है। एंटी फंगल ट्रीटमेंट टू सबस्ट्रेट इज मस्ट, देन स्टिफनर्स नेसेसरी। फ्लो रैपिंग: मेरिट्स में एक्सलेंट MBTR, मॉइस्चर वेपर ट्रांसमिशन रेट एंड गैस बैरियर, बाहर से जो मॉइस्चर और गैसेस हैं उनको प्रोडक्ट के अंदर नहीं आने देता है। फ्लो रैपिंग में जो पैकेजिंग रहती है, वाइडर चॉइस ऑफ सबस्ट्रेट्स, पिल्फर प्रूफ, एक्सलेंट प्रिंटेबिलिटी एंड डिस्प्ले वैल्यूज़, मॉडर्न कंटेम्प्रेरी पैक्स। डीमेरिट्स में हाई कैपिटल कॉस्ट, पैकेजिंग कॉस्ट इज़ ऑल्सो हाई एंड शेल्फ डिस्प्ले एवरेज, दिखने में शेल्फ पे उतना अच्छा नहीं लगता है। देन मशीन अवेलेबिलिटी चैलेंज। नेक्स्ट इज़ कार्टनिंग। कार्टनिंग के मेरिट्स की बात करें तो प्रीमियम लुकिंग, शॉर्टर लीड टाइम, एक्सीलेंट डिस्प्ले वैल्यू, वाइडर सप्लाई वेज। एंड डीमेरिट्स में वही हाई कॉस्ट, वेरी हाई कॉस्ट, कैपिटल कॉस्ट एंड पैकेजिंग कॉस्ट, बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ता है ये ऑपरेशन। देन एवरेज बैरियर प्रॉपर्टीज़, नॉट पिल्फर प्रूफ, नीड एंटी फंगल ट्रीटमेंट। क्लिंग प्लेट रैपिंग। मेरिट्स में है नोबल एंड यूनिक पैकेजिंग, एक्सलेंट प्रोडक्ट डिस्प्ले वैल्यू, अमेंडेबल टू ऑड शेप्स, पिल्फर प्रूफ एंड गुड बैरियर। वेरी हाई कॉस्ट ऑफ मशीन, लो थ्रूपुट, कस्टम बिल्ट आउटर पैकेजिंग, पुअर अवेलेबिलिटी एंड नैरो सप्लाई वेज। जो स्पेशल पैक्स, किट पैक्स डिज़ाइन किए जाते हैं, दैट इज़ प्लेट पैक रैपिंग एंड क्लिंग रैपिंग। नेक्स्ट इज़ फ्लेक्सिबल पाउचेज। मेरिट्स इसके बहुत ज़्यादा है, गुड बैरियर प्रॉपर्टीज़, वाइडर चॉइस ऑफ मटेरियल, प्रीमियम अपील, एक्सलेंट ग्राफिक्स, गुड शेल्फ डिस्प्ले वैल्यू, ऑप्टिमल पैकेजिंग कॉस्ट, पिल्फर प्रूफिंग, रिफिल्स एंड सिंगल डोजेस पैक्स अवेलेबल। डीमेरिट्स की बात करें तो स्लोअर स्पीड ऑफ पैकेजिंग एंड वेरी हाई कैपिटल कॉस्ट, नॉट रीयूजेबल और रिसाइकलेबल पैकेजिंग। नेक्स्ट इज bottles. Bottles have good shelf display value, consumer convenience, pilfer proof, lower capital cost, reusability of packaging. And demerits: very high packaging cost, lower throughput. पैकेजिंग मटेरियल्स फॉर सोप्स। अभी सोप्स पैक करने के लिए कौन से पैकेजिंग मटेरियल्स यूज़ किए जाते हैं आइए जानते हैं। आउटर पैकेजिंग मीन्स प्राइमरी पैकेजिंग। सबसे पहले जो सोप है वो जिस पैक में पैक किया जाता है, दैट इज़ क्ले कोटेड पेपर। पेपर के अंदर रैप करते हैं उसको, मैप लिथो में या पोस्टर पेपर, लैमिनेट, पेट पॉली और पेपर पॉली, ये कुछ टाइप्स हैं जिसमें कि सबसे पहले सोप को पैक करते हैं। देन स्टिफनर बोर्ड, पल्प बोर्ड, पॉली लैमिनेटेड पल्प बोर्ड, वैक्स कोटेड पल्प बोर्ड, इनर ग्लासिन लाइनर, जो सेकेंडरी कार्टन की पैकिंग की जाती है। देन बात आती है फाइनल स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन पर्पज से उसको कॉरुगेटेड 3 प्लाई और 5 प्लाई बॉक्सेस में, जो ब्राउन कलर के बॉक्सेस हैं उसमें पैक किया जाता है। देन बॉक्सेस ऑफ वर्जन एयरक्राफ्ट, बॉब टेप्स, गम्ड पेपर टेप्स, सिलिकेट ग्लू यूज्ड फॉर बॉक्स सीलिंग। पैकेजिंग मटेरियल फॉर डिटर्जेंट बार, आउटर रैपर्स। आउटर रैपर्स मीन्स जो डिटर्जेंट को पैक करने के लिए फर्स्ट टाइम जो
प्राइमरी पैक यूज़ किया जाता है. प्राइमरली poly coated paper with sandwich printing, then waxed wrappers. Next is outer packaging. Similarly, 3-ply and 5-ply shapers made from aircraft paper with reinforcement corners. Packaging material for detergent, powder and liquids. HDP containers, cartons, flexible laminates. वो हमारे पास सर्फ एक्सेल और व्हील ये सब के पैकेज जो आते हैं, दैट इज़ प्राइमरी पैकेज. देन आउटर्स में सिमिलरली कोरुगेटेड बॉक्सेस विद पार्टीशन एंड हनी कॉम. वही 3-ply 5-ply वाले जो कोरुगेटेड ब्राउन बॉक्सेस रहते हैं. HDP बोवन सैक्स. नाउ व्हाट आर द फ्यूचर ट्रेंड्स इन सोप पैकेजिंग में? Soap cakes may be replaced by liquid soaps, gels, creams and packaging options, bottles with flip-top caps, pump dispensers, dosing devices, flexible refills, etc. Detergent powders may be replaced by concentrated powders, means कम क्वांटिटी में concentrated फॉर्म में रहेंगे, उसमें आपको पानी डाल के उसको उसमें क्वांटिटी बढ़ानी पड़ेगी यूज़ करने के लिए. सो इट्स पैकेजिंग इज़ कार्टन, प्लास्टिक जार एंड फ्लेक्सिबल लैमिनेट्स. लिक्विड डिटर्जेंट्स मे बी रिप्लेस्ड बाय कंसनट्रेटेड लिक्विड्स. कंसनट्रेटेड फॉर्म में मीन्स कि जो अभी 1 लीटर में जो पैकेजिंग आती है वो मे बी आपको 100 ml में आपको वो उतना ही वो मिलेगा जिसको आप बाद में, जिससे वो मैजिक पाउच आता है उसमें आपको पानी डाल के आप उसको कंसंट्रेशन उसकी बढ़ा लेते हैं, वैसे ही. तो bottles with dispensers, dosing devices and flexible refills. So this is all about soap and detergent packaging, and I believe this information will be very helpful for you during your course of IIP journey. So thank you, all the very best. Please do like, share and subscribe the channel.